नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कहना सेंट्रल पर। हाँ, सेल बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, कंटिन्यू करते हैं क्लास। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं हम। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। A great deal can be learned about the structure of a membrane protein and its orientation within the lipid bilayer from a computer-based computational analysis of its amino acid sequence, which is greatly reduced from the nucleotide sequence of an isolated gene. The first question on my task is which segment of the polypeptide chain are actually embedded in the। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि कौन सा जो प्रोटीन का हिस्सा है वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है, दसा हुआ है। Those segments of a protein embedded within the membrane, which are described as the transmembrane domains, have a simple structure. They consist of a string of about 20 predominantly। और जो स्ट्रक्चर दसा हुआ है उसी को बोलते हैं हम द सेगमेंट ऑफ प्रोटीन एम्बेडेड है जो मेम्ब्रेन विच डिस्क्राइब द ट्रांस मेम्ब्रेन domains have a simple structure. They consist of a string of 20 predominantly non-polar amino acid that span the core of the lipid bilayer as an alpha helix। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो दसे हुए हैं उस फंक्शन को बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स of single transmembrane helica shown in figure 4.18, which depict the two-dimensional structure of glycophorin A। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोफोरिन ए को एग्जाम्पल के तौर पे। द मेजर इंटीग्रल प्रोटीन। अब आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोफोरिन ए किस तरह का प्रोटीन है, तो ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है ऑफ द एराथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही आपको देखने को मिलेगा। ऑफ द 20 अमीनो एसिड दैट मेक अप द लोन अल्फा हेलिक्स of glycophorin monomer amino acid 73 to 92, all but 3 have hydrophobic side chains or an hydrogen atom in the case of the glycine residue. The exception are serine and threonine, which are non-charged polar residue. Figure 4.19a shows a portion of transmembrane helix with a threonine residue not like those of a glycophorin A। The hydroxyl group of the residue side chain can form a hydrogen bond with one of the oxygen atom of the peptide backbone. Fully charged residue may also appear in transmembrane helices, but they tend to be near one of the ends of the helix and to be accommodated in ways that allow them to fit into their hydrophobic environment. This is illustrated in the model transmembrane helices shown in figure 4.19b and c. Each of the helices in this figure contains a pair of charged residues whose side chains are able to reach out and interact with the innermost polar regions of the membrane, even if it requires distorting the helix to do so. Figure 4.19d shows two tyrosine residues with their hydrophobic aromatic side chains. Each aromatic ring is oriented parallel with the hydrocarbon chains of the bilayer with which it has become integrated, जिससे ये integrated जुड़ी हुई है। Knowing the amino acid sequence of integral membrane protein, we can usually identify the transmembrane segment using a hydropathy plot। अब हमको transmembrane segment अगर पता करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हाइड्रोपैथी प्लॉट का यूज़ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन भी काफ़ी बार बनते हैं यहाँ से। हाइड्रोपैथी प्लॉट इन विच ईच साइट अलोंग अ पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोपैथी प्लॉट में, इन विच ईच साइट अलोंग अ पॉलीपेप्टाइड, हर एक जो पॉलीपेप्टाइड के साथ में साइट होती है उसको एक असाइन दी जाएगी वैल्यू जो प्रोवाइड करेगी मेजर ऑफ द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड। पता लगाएगी जो अमाइनो एसिड है उसकी हाइड्रोफोबिसिटी कितनी है एट दैट साइट एज वेल एज दैट ऑफ द इट्स नेबर, आसपास को भी देखेगी। दिस अप्रोच प्रोवाइड अ रनिंग एवरेज ऑफ द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ शॉर्ट सेक्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एंड guarantees that one or few polar amino acid in a sequence do not alter the profile of the entire stretch। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग वेरियस क्राइटेरिया। काफ़ी सारे क्राइटेरिया यूज करते हैं, सच एज देयर लिपिड सोलिबिलिटी। हम देखते हैं इनका जो लिपिड सोलिबिलिटी वो कितनी है, और द एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर दैम फ्रॉम नॉन पोलर मीडियम इनटू एन एक्वस मीडियम। एक नॉन पोलर मीडियम से एक्वस मीडियम में ट्रांसफर करने के लिए कितनी एनर्जी यूज होगी, एनर्जी को भी हम एज ए फैक्टर कंसिडर करते हैं। हाइड्रोपैथी प्लॉट फॉर ग्लाइकोफोरिन शोन इन फिगर 4.2। ग्लाइकोफोरिन ए के लिए हाइड्रोपैथी प्लॉट फिगर 4.20 में आपको दिखेगा। Transmembrane segments are usually identified as a jagged peak that extend well into the hydrophobic side of the spectrum. A reliable prediction concerning the orientation of the transmembrane segment within the bilayer can usually be made by examining the flanking amino acid residue. In most cases, as illustrated by glycophorin in figure
0.18 दूस पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एट द साइटोप्लाज्मिक फ्लैंक, जो पार्ट साइटोप्लाज्मिक फ्लैंक पर है ऑफ ए ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट टेंड टू बी मोर पॉजिटिवली चार्ज, जो ठीक है ट्रांस में बाहर की तरफ वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, एंड दोज आर एट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लैंक, ठीक है, जो अंदर की तरफ होंगे वो क्या होंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो कम पॉजिटिव होंगे आपके। नॉट ऑल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेन ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं उनके पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस नहीं होती, ठीक है। नंबर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेन रिलेटिवली लार्ज चैनल पोजीशन विद इन ए सर्कल ऑफ मेम्ब्रेन स्पैनिंग बीटा स्टैंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ बैरल, बीटा स्टैंड भी होती है बैरल की फॉर्म में, एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.4। टू डेट एक्वस चैनल्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ बीटा बैरल्स है ओनली बीन फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन जो बीटा चैनल है या बीटा बैरल्स है ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे मिल रहे हैं, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ से स्टेटमेंट बेस आपके क्वेश्चन बनेंगे, सी सेक्शन का जो सहसागर में है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ से आपको स्टेटमेंट देके क्वेश्चन डाल सकता है। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता है, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। आइए जी, अब ये डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ये आपका ग्लाइकोफोरिन ए, एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। अब आपको ये भी याद रखना है जो ग्लाइकोफोरिन ए है, ठीक है, इसके पास सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। नंबर एक बात, द सिंगल अल्फा हेलिक्स दैट passes through the membrane consists predominantly of hydrophobic residue, brown colored circles. The four positively charged amino acid residue of the cytoplasmic domain of the membrane protein form ionic bond with negatively charged lipid head group. Carbohydrate are attached to a number of amino acid residue on the outer surface of the protein shown in the inset. All but one of the 16 oligosaccharides are small O-linked chains. The exception is a larger oligosaccharide linked to the asparagine residue at position 26. Glycophorin molecule are present as homodimer. Glycophorin जो molecule है वो present होते हैं homodimer form within the erythrocyte membrane. The two helices of the dimer cross over one another in the region between 79 residue 79 and 83. This glycine XX glycine sequence is commonly found where transmembrane helices come into close proximity. ये आपकी पूरी बायोलेयर में बताया हुआ है ग्लाइकोफोरिन ए का, ये आपको डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इट वाज नोटेड ऑन पेज 55 दैट द अल्फा हेलिक्स इज अ फेवर्ड कन्फर्मेशन बिकॉज इट अलाउ फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो अल्फा हेलिक्स है वो फेवर्ड कन्फर्मेशन है, यानी उसको मतलब मैक्सिमम मतलब ओकर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनते हैं यहाँ पर बिटवीन एटम्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, देयरबाय क्रिएटिंग स्लाइटली स्टेबल लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से वहाँ पर स्टेबल का मतलब लो एनर्जी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द मेम्ब्रेन स्पैनिंग पॉलीपेप्टाइड, और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है membrane spanning polypeptide that is surrounded by fatty cell chain and these cannot form hydrogen bond with an aqueous solvent. Transmembrane helices are at least 20 amino acid in length. अब आपको ये ध्यान रखना पॉइंट, जो ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस होती है वो 20 अमीनो एसिड की लेंथ होती है उनकी, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लें, ये वाला पॉइंट ट्रांसमेम्ब्रेन। यहाँ से क्वेश्चन CSIR स्टेटमेंट बेस पहले भी पूछा हुआ है। Because this is the minimum stretch of a polypeptide capable of spanning the hydrocarbon core by a lipid bilayer of a 30 angstrom width. A few integral membrane protein have been found to contain loops or helices that penetrate but do not span the bilayer. An example is the P helix in figure 4.39. ठीक है, उसके बाद डायग्राम ये देखिए, ये तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था ना, ये डायग्राम भी होगा ये आगे। अब ये क्या है आपका, अकोमोडेटिंग वेरियस अमीनो एसिड रेसिड्यू विद द ट्रांस, अकोमोडेट कर रहा है, डिफरेंट है, मतलब अकोमोडेट का मतलब ग्रहण कर रहा है, उसको एडजॉइन कर रहा है साथ में अमीनो एसिड रेसिड्यू को विद इन हेलिसेस, ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस। इन दिस पोर्ट्रेट ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिस, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द थेरोनिन साइड चेन एरो जो है आपको इज एबल टू फॉर्म ए शेयर्ड hydrogen bond with the backbone oxygen within the lipid bilayer. Hydrogen bonds are indicated by the dashed line and their distances are shown in angstroms. The side chains of the two lysine residue of the transmembrane helix are sufficiently long and flexible to form bond with the head groups and water molecule of the polar face of the lipid bilayer. ठीक है, the side chains of the two aspartic acid residue of this transmembrane helix can also reach the polar face of the bilayer but introduce distortion in the helix to do so. ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन भी हेलिक्स में क्या आता है,
ये इसकी वजह से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपैथी प्लॉट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हाइड्रोपैथी प्लॉट को हम डिटेल में पढ़ना ही है, हाइड्रोपैथी प्लॉट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से, है ना, ये देखिए हाइड्रोपैथी प्लॉट, ये आ गया डायग्राम, ये डायग्राम और बचा हमारा इस क्लास का। हाइड्रोपैथी प्लॉट फॉर ग्लाइकोफोरिन ए। देखिए भाई आप कैसे इसको हाइड्रोपैथी प्लॉट को पता कर पाओगे। Hydrophobicity is measured by the free energy required to transfer each segment of the polypeptide from a non-polar solvent to an aqueous medium. Values above the zero line are energy requiring. जीरो से ऊपर क्या है, पॉजिटिव है डेल्टा जी, यानी एनर्जी रिक्वायरिंग है। इंडिकेटिंग द कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचेज ऑफ अमीनो एसिड, जो डेल्टा जी पॉजिटिव है वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचेज ऑफ अमीनो एसिड। ये स्ट्रेच ऑफ अमीनो एसिड कंसिस्ट करते हैं, हैव प्रिडोमिनेंटली नॉन पोलर साइड चेन्स। पीक्स दैट प्रोजेक्ट अबव द रेड लाइन, जो रेड लाइन्स के ऊपर पीक है, ये आपको पीक दिख रहा है, अगर इंटरप्रेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन, इसी को क्या बोला जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें कितने पीक है, एक पीक है, इसलिए इसको बोला है ग्लाइकोफोरिन जो ए है आपका सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन, एक ही उसका क्या है, पीक है। ठीक है, ये एन टर्मिनस है आपका, ये अमीनो एसिड रेसिड्यू है 50-10, और ये सी टर्मिनस है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिसिटी आपकी मेजर हो गई है। तो इस तरह से आप हाइड्रोफोबिसिटी को मेजर करते हैं। इस क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई कन्फर्मेशनल चेंज इन इंटीग्रल। भाई हम कौन से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंज आया है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के, या उसके कन्फर्मेशन में चेंज आया है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास को। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो बच्चा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, जूलॉजी असिस्टेंट HPSC PGT बायोलॉजी के, उसको यूनिट वाइज नोट चाहिए हैं HPSC के, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9416466016, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। धन्यवाद।